Online, am I audible? There'll only be audio for this session. Can somebody please confirm? Am I audible? Okay. Recording in progress. અરે મારું બી ઓપરેશન હોય છે પણ આ તો વાત છે. હા હમણાં ક્યાંથી આવી રહી છે. હા હા દેખાય બધા ઓળખીને દેખાય જ અમુક કઈ છે. હા લાઈટ છે એટલે હું એકલો મને એ જ થાય બધું આ બધાને જોઉં છું નવા નવા કોણ લાગે ઘણા બધા લોકો નવા નવા તો ત્યાં તમને ટ્વેલ્થ વાળાની કરી ગઈ જોરદાર ગઈ ને મને ખબર હા મને ખબર કરંટ અફેર્સ શું આવડે છે તમને લોકોને નેટો યુક્રેન બોલે તાઇવાન આવ્યો અર્થક્વેક એની ખબર છે આજના જમાનામાં કેવું છે આપણું પહેલે ખબર હોવી જોઈએ એટલે તો તકલીફ છે ભાઈ હું તમને લોકોને સ્પેશિયલ 15-20 મિનિટનો સમય બી આપીશ વાતો કરવા માટે ચિંતા ના કરો હા? પૂરેપૂરો હવે અવાજ નહીં હા આઈએલઓ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને હું હિન્દી બોલીશ દોસ્ત ચિંતા નહીં હા हाँ हिंदी बोलिए हाँ हाँ आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडिया में दिल्ली इंडिया ना हो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लगो लगो होमवर्क लगो चलो जल्दी जल्दी काढो हाँ guys ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाँ
અનન્યા આएगा આવાજ આएगा આएगा જો તમને લોકોને કાયદો ખબર છે ને જેટલો અવાજ કરશો એટલા લેખ છોડીશ એના કરતા અવાજ ના કરો તો સારું બરાબર અને તમે બધા મુકેશભાઈ કરતા બીસી જો પણ ફોન થોડો સાયલેન્ટ બરાબર હવે સાંભળો સી ILO is a very unique organization, International Labour Organization. Why it is unique? Because now if we see, you will try to associate it with United Nations, okay? But ILO was formed much before United Nations. 12th में अगर आपने कोई विषय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो तो उसमें ऐसा आता है कि ILO was formed along with League of Nations. वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया था उसका पार्ट था ILO बाकी सब निकल गया ILO अभी भी चल रहा है ठीक है सो नाउ इट इज कंसिडर एज अ UN स्पेशलाइज एजेंसी इन अ वे ठीक है आप लोग लिखो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वो आप लोग ढूंढ के लाओ लिखो ILO हेडक्वार्टर कहाँ पे है लिखो એવું બધું હવે પતી ગયું તમે બધા શેર કહી દીધા सारे शहर बोल दिए अभी कुछ खत्म नहीं बात खत्म चलो भाई लिखो पहले वो फिर और क्या पढ़ा है आप लोगों ने करंट अफेयर्स में कौन हाँ 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 मन नत खबर है हाँ क्या पता है करंट अफेयर्स में पढ़ते क्यों आप लोग ओके गुड यूएस जापान फिलीपींस और एक और कंट्री है साउथ चाइना सी में कुछ कुछ तो करने वाले हाँ फिलीपींस का कुछ करने वाले गुड South China Sea is a contested region. Okay, China consider it to be their part, their sovereignty, but then it is contested by so many countries. Vietnam, Philippines are the major players in the region, along with claims from Singapore, Malaysia, and Indonesia. मतलब सबको चाहिए कुछ ना कुछ ठीक है. South China Sea you should know. ठीक है चलो बाद में और कुछ Sorry. Was Indian woman in 55 games to win a bronze medal for India. Okay, which event? Weightlifting. अरे event weightlifting का कौन सा see what are 55 games. okay then it is fine because there are so many sports you should not read about everything ठीक है any major event major achievements you should go for it otherwise avoid it फिर और कुछ बस इतना ही हुआ है नेशनल मैरीटाइम डे 5th अप्रैल को ओके गुड वर्ल्ड हेल्थ हाँ वर्ल्ड हेल्थ डे का मन नहीं खबर वर्ल्ड हेल्थ डे है ओके चलो लिखना स्टार्ट करो आई विल डिक्टेट ठीक है देखते हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस कौन राकेश शर्मा लिखो राकेश शर्मा के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस बात को 40 साल कंप्लीट हुए दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट इट 3rd April 1984 squadron leader Rakesh Sharma become the first Indian to travel into space. और ये सब लिखने की जरूरत नहीं आप समझ रहे हो मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ यू कैन जस्ट राइट राकेश शर्मा स्पेस फर्स्ट इंडियन करके स्पेस हाँ 3rd April 1984 अभी उस समय हमारे पास तो ऐसा रॉकेट नहीं था आज भी नहीं है वी आर डेवलपिंग इट वी विल डू इट विद इन फ्यू इयर्स तो कहां से गए भाई रशिया ओके बिकॉज वी आर वेरी क्लोज विथ स्टिल एंड बिफोर तो रशिया के सोयूज SOYUZ T11 सोयूज SOYUZ
T11 that was the air spacecraft basically. ठीक है, ટી હવે તીથ ફોર ટી, હા ભાઈ, હા આમાં કન્ફ્યુઝ ના થઈ જતા તમે લોકો. બસ સ્પેસક્રાફ્ટ. હવે સ્પેસક્રાફ્ટ નહીં લખવાનું, T11 સોયુઝમાં જ ગયા હશે, વાત ખતમ. નેશનલ મેરીટાઈમ ડે લખી લો. मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th अप्रैल. तो कुछ तो हिस्ट्री होगी. वाई? सो देयर वाज दिस शिप कॉल्ड SS Loyalty in 1919. It sailed for the first time from Mumbai to London. कहां से गए? मुंबई. कहां गए? लंदन. ठीक है. सो इन दैट मेमोरी तब से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे. अभी इसको सरकार कभी चेंज कर दे, नए से पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन अभी तो ये है. ठीक है. SS लॉयल्टीज, LOYALTY, लॉयल्टी. एक क्वेश्चन लिखो. प्रिवेंटिव डिटेंशन. ये नाम से क्या पता चलता है? देखो, देयर इज अ प्रोविजन विद द गवर्नमेंट. सुन लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ऐसे ही लिखना ही नहीं है, समझ लो सिर्फ. इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ, then government has the power that they can stop me and held me in custody. That is called preventive detention. आपको सिर्फ इतना ढूंढ के लाना है that it is mentioned under which article of the Indian Constitution. हो गया? आगे लिखो. कच्चा तीवू कंट्रोवर्सी. लिखो, सिर्फ कच्चा तीवू लिखो अभी आप. अरे ये आइलैंड खेल रहे हैं ना, कच्चा तीवू. अभी इसका नाम देखो, स्पेलिंग आप समझो, मेरे को भी नहीं आएगा स्पेलिंग में. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ कच्चा लिखता. कच्चा के लिए KCHA चाहिए और तीवू के लिए TIVU चाहिए. ठीक है, सब समझ लो वर्ड का. TIVU. आप लिखो ऐसे कि आप पढ़ो, आपको पता चल जाए, क्योंकि इसकी स्पेलिंग हर कोई अलग लिखेगा. ठीक है. नाम छे दोस्त आइलैंड में. तो देखो भाई, पहले कंट्रोवर्सी सुन लो, बहुत अभी न्यूज में चल रहा है. हाँ, इंडिया हमको क्या आइलैंड बहुत ज्यादा प्यारे लगने लगे आजकल. ठीक है, पहले मालदीव, फिर ये श्रीलंका, कभी और ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए. ठीक है, एंटरटेनमेंट. बोरिंग लगता है फिर लाइफ. ठीक है, अभी देखो, सी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाऊंगा बाद में, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो. देखो, फ्रॉम एवरी लैंड बॉर्डर देयर आर सम रीजन्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. ठीक है, कि ये क्या है, आपकी मैरीटाइम बाउंड्री होगी. एक होता है टेरिटोरियल वाटर्स, फिर ओपन सीज होता है. मैं वो डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको. ठीक है, बट देन आप समझ लो, देयर इज वन आइलैंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों कंट्री क्लेम करेगी कि नहीं नहीं, ये तो मेरी मैरीटाइम टेरिटरी में आता है. दूसरा वाला बोलेगा नहीं नहीं, मेरी वाली में आता है. दिस इज सेम लाइक साउथ चाइना सी, लेकिन इन पार्क स्ट्रेट. ये आइलैंड कहाँ पे? पार्क स्ट्रेट, अगर आपने देखा हो तो. ठीक है, श्रीलंका के इंडिया के बीच में. सो
It was a main contention since very long time. After independence चल रहा था. So in 1974 or early 70s, गवर्नमेंट केम टू एन अग्रीमेंट ऑफ बोथ द साइड्स. ठीक है कि भाई ये जो कच्चा तीवू है वो आप ले लो, अपने को नहीं चाहिए, हमको चलेगा. ठीक है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ. बाद में आगे कुछ बोलूंगा नहीं, अभी आप सिर्फ लिखोगे. ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स क्या है पढ़ाने में ध्यान रखना पड़ता है. अभी वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं. ठीक है, तो पता चला घर में जाओ उसके पहले सीबीआई पहुंच गई हो. चलो लिखो. 1974 में agreement was signed on कच्चा तीवू, June 26 to June 28. रूपांशी, यू आर राइट. ओके, आपने जो लिखा है वो गुड जॉब. June 26 to 28, 1974. ठीक है. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखो, इंदिरा गांधी. अगर किसी ने नाम की मेरे को पूछा कि सर ये कैसे लिखूं, मैं छोड़ूंगा नहीं. ठीक है, 10 बार लिखूंगा. लिखो, मतलब लिखो. श्रीमा लिखो पहले. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. श्रीमा लिखो पहले. श्रीमा. निर्मा में एस लगा दो. ठीक है, तो श्रीमा हो गया. ठीक है, हाँ. आर डी, हाँ. आर डी बर्मन, पंचमदा, बराबर. हाँ, आर डी. और बंदर नाइके. जो है वो पढ़ा रहा हूँ यार. देखो, बंदर, BANDAR, लिटरली. बंदर लिखो पहले और फिर नाइके. नाइके एज इन NIKE. नाइकी कहा, नाइका में आई लगा दो एक थोड़ा. ठीक है, हाँ. वो पूरा नाम है भाई साहब का. हाँ, तो भाई साहब ही होंगे. बहुत लड़कियां होती है भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब. ठीक है, आज भी ऐसा ही है. ठीक है. सो दे साइन दिस अग्रीमेंट टू डिमार्केट बाउंड्री. ठीक है, लिखो ये कहां पे है. इट्स लोकेटेड इन पार्क स्ट्रेट. ठीक है. स्ट्रेट कहां पे होता है, स्ट्रेट क्या होता है वो पता है, ज्योग्राफी में आता है. क्या होता है स्ट्रेट? नहीं, कनेक्शन टाइप, कनेक्ट वेरी गुड. सही हो आप, सब सही. वेरी गुड. Now the main contention अभी ऐसा है that when this agreement was signed, even after that 2 years later there was more agreement was signed. It was made clear that we will not fish. We मतलब both countries will not fish in this region without the government's approval. ठीक है. तो अभी ये इसलिए चालू है बिकॉज फेज 1 में कौन जा रहा है वोटिंग में, तमिलनाडु. तो फिर कुछ तो वहां से उखाड़ के लाना पड़ेगा ना. पुराना पुराना ढूंढते रहते हैं हम, कहीं पे भी कुछ मिला कुछ मिला. ऑब्वियसली. व्हाई? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड. आपको पता है वी साइंड बांग्लादेश बॉर्डर एनक्लेव अग्रीमेंट. ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एनक्लेव्स क्या होते हैं, सपोज देयर इज अ स्मॉल रीजन, उसके आजू बाजू पूरा इंडिया का रीजन है एंड सराउंडिंग इट ऑल द साइड्स इज द टेरिटरी ऑफ बांग्लादेश. दैट वी कॉल एनक्लेव. तो हमने अभी बहुत सारे एनक्लेव्स दे दिए बांग्लादेश को. सो व्हाट, वो मतलब बहुत बड़ा गलती हो गया. आज से 50 साल बाद कोई और उठाएगा उसकी बात. दीज आर अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू गवर्नमेंट. हाँ भाई तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, बस बात खत्म. यू कैन नॉट क्वेश्चन इट. लेकिन ठीक है, मैं बोला ना इलेक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा. रिमेंबर दोनों के नाम, लोकेशन ऑफ द कच्चा तीवू आइलैंड एंड व्हेन द अग्रीमेंट वाज साइंड. बाकी कंट्रोवर्सी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द फिशरमैन इज अ बिग इश्यू इन तमिलनाडु. ठीक है, तो वो फिर ये सब चलता है. वैसे क्वेश्चंस हमें नहीं आएंगे. हमें ये आएगा वेयर इज दिस आइलैंड लोकेटेड, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, वी शुड नो. मोर प्रिसाइज, पार्क स्ट्रेट. ठीक है, ये साइन हुआ, प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी.
ठीक है, कब साइन हुआ? 1974, 22 जो मैंने लिखा है डेट साइन, ठीक है, जून 26 टू जून 28, ठीक है। चलो भाई आगे लिखो। वहां एक क्वेश्चन लिखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म, भाई आवाज नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड is mentioned under which article of the Indian Constitution? क्योंकि इसकी भी बहुत कबड्डी कबड्डी चल रही थी, ठीक है। ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा या तो फिर कुछ छोटी एक नोट बना के दे दूंगा, मैं देखता हूँ मुझे ये कैसे, क्योंकि उत्तराखंड एनेक्टेड यूसीसी, ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले आज इतना लिखो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आपको किसी को नहीं पता। देखो मैं, हाँ वेरी गुड, आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 में पूछने वाला था विच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन है दैट स्टेट शैल ट्राई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, लिख लो आर्टिकल 44। यस शिलजा, वेरी गुड, करेक्ट। देखो भाई इलेक्शन अनाउंस हो गए, हुए कि नहीं, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब तक चालू रहता है, ध्यान से समझो। फ्रॉम द डे ऑफ अनाउंसिंग द इलेक्शंस टू रिजल्ट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनेक्टेड रहता है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है, ये हो ना उसका कोई फर्क ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी। इसका वायलेशन करो, इलेक्शन कमीशन बोलेगा यार ऐसा तू मत कर, इस पर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इज इट बाइंडिंग, इज इट स्टैट्यूटरी, नो, ठीक है। लेकिन कमिंग टू द मेन पार्ट, नॉमिनेशन फाइल करना होता है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, तेरे को लड़ना है, तेरे को लड़ना है, नॉमिनेशन, उसके बारे में लिखो। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, it is filed under section 33. Nomination for elections is filed under section 33 of the RPA Act 1951. वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, मैं बहुत पहले इसके ऊपर बहुत पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। RPA Act, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। कौन डिसाइड करता है डेट्स इसकी के कब फाइल करने हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जब आप जाते हो, व्हेन यू गो देयर, देन देयर नीड्स टू बी अ पर्सन हु इज कॉल्ड प्रपोजर, जो आपको एंडोर्स करता है कि हाँ भाई इसको ले लो आप, ठीक है। ये सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं, ध्यान से। इफ यू वांट टू कंटेस्ट इन केरला, देन दैट प्रपोजर शुड बी फ्रॉम केरला एंड द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ रहे हो? सपोज गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी अमित शाह है, ठीक है, then someone from Gandhinagar constituency has to propose his candidature, ठीक है। फिर आगे सिर्फ सुनना है, ठीक है। एक कैंडिडेट कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तब मैंने आपको आरपीए पढ़ाया था, ठीक है। बस बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है, जलसा करो, पति। सो गए थे दोस्त।
लिखो हैवाना सिंड्रोम। भाई एज हवाना एज क्यूबानु एज वेरी गुड। हैवाना सिंड्रोम HAVANA ठीक है। हाँ एज गीत वाड़ू। हाँ बराबर चलो चलो लखो। सी it is been consist syndrome मतलब it's a अभी सुन लो इसका मतलब सी this is continuously news why because there are been large scale allegation by the US कि हमारे डिप्लोमैट्स को ये रशिया वाले इस से दे आर टारगेटिंग अवर डिप्लोमैट्स। क्या करना चाहते हैं उनको ये हवाना सिंड्रोम डालना चाहते हैं ठीक है लिख लो बस इतना। They use methods deep voices which makes you ill ભાઈ તમે બધું જોરદાર છે। It's like a next level warfare। હું ટેસ્ટ કરીને આવીશ ને એટલે તને કહીશ। Tactics to like No, this is sabotage, warfare, subversions वो वाला ठीक है। नहीं नहीं डिप्लोमेट्स लिखो। आपको ज्यादा लिखना ही है तो लिखो चलो। इट इज अ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। मैंने बोला ना मेंटल हेल्थ सिस्टम सिम्टम्स अला सिम्टम्स अच्छे है ना सिस्टम तो नहीं आता आपने सिस्टम को बोला तो શું થયું છે क्या symptoms that are experienced by the US intelligence that are experienced by US intelligence and embassy officials ठीक है। intelligence है embassy officials US તમે લોકો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ બરાબર છે। You will hear high pitch sounds even though આજુબાજુ અવાજ નહીં है high vertigo nauseousness બહુ જોરદાર વસ્તુ છે। ચલો નેક્સ્ટ લખો અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલ નું નામ છે અગ્નિ પ્રાઇમ। देखो बैकग्राउंड समझ लो दो टाइप की मिसाइल्स होती है एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। वो एक लाइन में डिफरेंस से याद कर लेજો बैलिस्टिक मिसाइल्स आर लाइक प्रोजेक्टाइल्स ऐसे जाती है फिर री एंटर करती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है जैसे एरोप्लेन उड़ती है वैसे आराम से इट स्टेज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड देन गोस एंड अटैक्स ठीक है। वो प्रोजेक्टाइल फॉलो नहीं करते ठीक है। दीज आर वेरी रूडिमेंटरी डेफिनेशन आई एम टीचिंग यू ठीक है। आपके काम का है आगे का नहीं है इतना समझ लो। इसके ऊपर डिटेल्स लिखो। It was conducted by Strategic Force Command। आपको ये पता नहीं होगा अगर आज भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर करनी है इंडिया को कभी भी तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वाले करते हैं SFC ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड along with DRDO ठीक है फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड।
आइलैंड। गलत बात। DRDO develops all these technologies. Manufacturing are done by different units. ठीक है, चलो आगे लिखो। ये मतलब इसके इंक्लूडेड, it is a two stage canistered solid propellant, मतलब इसका propellant as in fuel, बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी है? 2 स्टेज है, कैनिस्टर्ड है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल विथ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। पूरा पाकिस्तान आधा चाइना। मेरे को ऑप्शन दे तो मैं वो मार्क करूंगा। ठीक है, हाँ। अपने वाला उड़ता भी है एक्चुअली, बाकी का पता नहीं। आगे लिखो। इट इज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। मिसाइल मत लिखना, सिर्फ न्यूक्लियर केपेबल लिखना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? It has inertial navigation system. ठीक है, inertial navigation system। रूपांशी 2000 किलोमीटर। ठीक है, it is first new generation missile। पेन चाल से। It is first new generation missile after the end of integrated guided missile डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट पूरा मत लिखना प्लीज, DEV लिखना। प्रोग्राम में PROP लिखना, बस हो गया काम। ठीक है, देखो आप सबको मैं मान ही लेता हूं नहीं पता होगा। वी हैव फाइनेस्ट स्टॉक्स ऑफ मिसाइल। अगर कभी नाम सुना हो तो वी हैव पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, ब्रह्मोस। लेकिन ब्रह्मोस इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सारी मिसाइल they were a part of a project which was launched by APJ under his leadership। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सिर्फ सुन लो। देखो, दैट वाज स्टार्टेड इन 1983, बस इतना लिख लो। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1983। देखो, नाम इतने जोरदार है ना कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जब भी पृथ्वी मिसाइल आप पढ़ो आगे जिंदगी में, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी। सरफेस टू सरफेस मतलब इट विल बी लॉन्च फ्रॉम सरफेस, टारगेट भी करेगा। फिर है आकाश, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, आकाश। हाँ, फिर अग्नि, अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। एक है त्रिशूल, समझ रहे हो कहां से निकलेगी त्रिशूल भी। और लास्ट जो है वो एक नाग मिसाइल करके। नाग स्पेशली बनाई है हमने टैंक को उड़ाने के लिए। ठीक है, ये सब आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं that under this program we have launched this 5 missiles। ठीक है, चलो। लॉन्च नहीं करते भाई हम, लेकिन रखना पड़ता है ना। कोई हमारे ऊपर लॉन्च करे तो हमारे पास तो कुछ होना चाहिए ना। अपने आप कुछ नहीं करता, आराम से रहने का है। चलो भाई, ये अभी थोड़ा भारी है, जीन थेरेपी है। ठीक है, देखो, जीन थेरेपी, थोड़ा बैकग्राउंड समझो। जीन भाई, जीन
પેલો અલ્લાદીન વાળું જીન નહીં, GNE, બરાબર. અને બીજું કઈ જીન યાદ આવતું હોય એ બી નહીં, બરાબર. તમે જીન જીન એવી રીતના કરો. હા. હું કહી રહ્યો છું પાછો GNE. આપણા બોડીમાં જીન્સ આવે ને ભાઈ, અચ્છા એ. ઓકે પાછો થેરેપી કહું છું, તમે લોકો આમ એટલું જીન જીન કર્યું નહીં. પછી આ સિમ્ટમ્સ નું સિસ્ટમ થઈ જશે. ઇન્ડિયા's first homegrown gene therapy. India's first homegrown gene therapy. ભાઈ એક્સિલન્ટ ટેકનોલોજી છે. આ વચ્ચે ભણાઈ હતી ડિટેલમાં, અત્યારે પાછું શોર્ટમાં લખાવું છું. ઇટ્સ અ વેરી રિવોલ્યુશનરી ટેકનિક. જોરદાર કામ, જોરદાર. યસ યસ, ના એ અલગ. હા, એ મેપિંગ વાળું, એ અલગ ન્યૂઝ હતા. ચલો લીખો. ઓલ્સો નોન એઝ CAR T cell therapy. ચિમેરિક ભણ્યા હતા ને આપણે, chimeric antigen receptor. યસ ભાઈ, હવે લખો ને બીજા બધા. CAR T, CAR T cell therapy launched by the President of India. ठीक है, एक जानवा, डेट इज नेवर इम्पोर्टेंट, कभी नहीं पूछेंगे. चलो, डेवलप किसने किया है, लिखो. ये टेक्नोलॉजी इट वाज डेवलप्ड बाय 3 इंस्टीट्यूट्स. पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. इसका नाम चेंज नहीं किया इन लोगों ने, ध्यान देना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा. बॉम्बे IIT બોમ્બે જ કહે છે ને. આ તો લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ તો ઓછું પડે તો હું કંઈક આપું એમ ન હોય. એ બધી ફેક ન્યૂઝ છે. ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે ઇન્ડિયામાં. તમે કઈ ખોટી ખોટી વાત, ક્યાં તકલીફ છે આપણને? हम थोड़ी ना जा रहे ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ, ટાટા. હા, તારે રિમોટ માંગવું જોઈએ મારી જોડે દર વખતે. લો ભાઈ 5 એન્ડ ઇમ્યુનો એક્ટ, ACT, मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इम्यूनो एक्ट, ACT. ये 3 ने मिलकर टेक्नोलॉजी बनाई है. मैं जैसा बोलूं ना वैसा लिखना, बस और कुछ मत पूछना. लिखो. पहले CAR T का मतलब क्या है? चिमेरिक, CHIMERIC, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स. और T क्या है? इट्स अ सेल. T सेल आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं. जब आपको कोई इंफेक्शन होता है तो आपको इम्यूनिटी देने वाला जो काम करता है वो कौन करता है? T सेल. ठीक है. It modifies our immune cells, which are T cells, specifically T cells. It modifies immune cells, specifically T cells. And it makes them cancer fighting cells, also known as CAR T cells. उसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं that it can fight against the cancer. ठीक है. आप लोगों ने मेरे को पूछा नहीं, पता नहीं, वरना आप लोग मुझे ऐसा कह सकते थे कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है या सुना है. इम्यूनिटी हमें कौन देता है? व्हाइट ब्लड सेल्स. ऐसा सुना है कि नहीं सुना? सो बेसिकली T सेल इज अ पार्ट ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. Excellent. It's a very effective proven strategy in the West, लेकिन very expensive. हमने ये सस्ता करके कितना हुआ? 20 लाख. तो महंगा कितना होगा? ये सस्ते में किया 20 लाख.
तो 4 करोड़ नहीं होते हैं इसके, हुआ ना अभी एंड वी ट्रीटेड द पेशेंट. इसमें बेस्ट थिंग इज नो कीमोथेरेपी, नो रेडिएशन. योर बॉडीज इंटरनल इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग द कैंसर सेल्स, विच इज इवोल्यूशन. ठीक है, आगे लिखो. टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड. बहुत जोरदार स्टडी, में तो मजा आ गया मैं जब पढ़ा ना इसके बारे में. टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड. अब सिर्फ प्रोसेस सुनो. देन इट इज मॉडिफाइड. तोड़ियो ना. Then it is modified in the laboratory by a man-made gene called CAR. ये जो CAR है वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं टी सेल्स में. वो कहाँ पे करेंगे, लेबोरेटरी में. हाँ, कार CAR. हल्दीराम खाया, हल्दीराम. ठीक है, हर जगह खाते हैं, तो उसके रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़े आपने कभी, इसीलिए नहीं. नहीं, इट्स गुड. अभी पढ़ो, लिखो. हल्दीराम इज डिक्लेयर्ड एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क. लिखो. पढ़ा, वही पढ़ा. हाँ. GI टैग आर डिफरेंट, ट्रेडमार्क इज डिफरेंट. अभी पहले ट्रेडमार्क के ऊपर फोकस करेंगे. हल्दीराम डिक्लेयर्ड एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क. ठीक है. किसने बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने. कौन से लॉ के अंडर हम ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं, दिस इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क. लिखो. ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. देखो, जीआई टैग की इसने बात की है, वो बता देता हूं. सी, जीआई टैग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडमार्क. व्हाई? जीआई टैग्स आपको तभी मिलते हैं when any product is a speciality of that geographic region. For an example, पटोड़ा कहाँ पे मिलेगा, उधर ही मिलेगा, पाटन, और कोई नहीं दे सकता. That is called GI tag, geographical indication tag. ठीक है. झगड़े चालू ही रहने चाहिए. ठीक है, मेरा ऐसा है, अपना चलना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए. हाँ, बिकॉज आपको पता नहीं होगा, बता ही दे. आई डोंट नो. आपने ये नहीं. हाँ हाँ, अगर आप ये बटर चिकन है बराबर. नाउ देयर आर टू फाइटिंग फॉर इट. हाँ, हमारे दोनों बेचो भाई, अब सब सो देयर इज अ केस एंड हाइट्स इज. आई रेड आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बारे में, तब मेरे को पता. एंड आई वॉज इन दिल्ली 3 weeks बैक. मैंने तो दोनों का खाया, मेरे को तो सेम ही लगा. भाई तेरा दरियागंज का भी सेम है, मेरे को तो सेम. और मैंने इससे ऐसे बाजू बाजू में रख के खाया, मैंने सेम तो सेम. लेकिन अभी मैंने बोला ना, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए. चलो आगे लिखो. इंडिया चाइना खेल लेते थोड़ा सा. चलो हमारा, I observe this, like our response is so different when one side is China and the other side is Maldives. ठीक है. So मतलब वही बात हुई ना, that you want to show that you are something by putting off a smaller guy. ये क्या बात हो गई. I understand, but ठीक है. लिखो. अरुणाचल प्रदेश
is considered as South Tibet by चाइना। ये बड़ा अजीब देश है, मेरे को बहुत मजा आता है इसका, थोड़ा थोड़ा खाते ही रहता है। हाँ, उनका मतलब कुछ भी कल उठ के यार ये वाला चाहिए, ठीक है। साउथ टिबेट, एक तो टिबेट ले लिया, फिर बोले कि नहीं वो नीचे वाला साउथ टिबेट। नाउ फॉर एन इंस्टेंस, अगर फॉर एन एग्जांपल पैरेलल यूनिवर्स में अगर उनको हमने दे दिया अरुणाचल, फिर बोलेगा ये नीचे वाला साउथ अरुणाचल है, वो भी हमारा है। भाई आजा, नीचे ही आना, पूरा इंडिया ले ले। This data is very important. Please write down. Line of actual control. This LAC word is solely associated with China. It's a boundary between India and China. ठीक है? But this boundary is not officially demarcated. ना चाइना के साइड से ना हमारे साइड से. It's a disputed boundary. ठीक है? इंडिया क्या कहता है? That line of actual control की length एग्जाम में पूछते हैं is 3488 किलोमीटर्स. कितनी है? 3488. लेकिन चाइना के लिए आधी बाउंड्री तो होती नहीं. चाइना बोलते हैं कि नहीं भाई सिर्फ 2000 किलोमीटर है. ठीक है, बाकी हमारे. लिखो नेक्स्ट. इन वेस्टर्न सेक्टर, जहां पे हमारी बॉर्डर चाइना के साथ कहां लगती है? लद्दाख में. इन वेस्टर्न सेक्टर India consider Johnson Line as the main boundary between India and China. Johnson and Johnson baby powder, वो वाला. ठीक है, Johnson Line as the main boundary. चाइना कहता है नहीं, हमको मैकडोनल्ड अच्छा लगता है. ठीक है, but China claims that boundary is McDonald line. नाम भी एकदम मौजिला है, अच्छा है. ठीक है, These lines are very important क्योंकि आपको इतना ही पूछ लेंगे कि the international boundary between India and Pakistan is known by which line. पता है? नहीं पता है, इसलिए ध्यान से पहले इतना लिखो, बाद में पढ़ाता हूँ. ठीक है, LAC region. Yes, yes. Line of actual control. अभी हमने पढ़ा. The LAC region, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा, is very close to or along मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन, अभी ये आपने मैकमोहन के बारे में सुना होगा. is along the मैकमोहन line which was demarcated, मतलब इसको ड्रॉ कब किया था? in 1914 शिमला कन्वेंशन. ये सब ब्रिटिशर जहां जहां भी जाते हैं ना, बहुत तकलीफ करते हैं. ठीक है, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत. ये 1914 में क्या हुआ था? ये लोग शिमला में पार्टी करने बैठे थे कि भैया और फिर बाउंड्री भी ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सो वी डिसाइडेड दैट मैकमोहन लाइन विल बी अवर बाउंड्री. ब्रिटिश इंडिया बेसिकली. चाइना को मजा नहीं आया, चाइना बीच में उठ के चला गया. ठीक है, तो चाय पानी नहीं दिया होगा. अच्छा, बट चाइना नेवर रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन. इसके लिए वो अगर मैकमोहन लाइन होती तो वी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड. बट चाइना तो वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है. ठीक है, दिस बॉर्डर लाइन्स आर इंपॉर्टेंट. एक होमवर्क लिखो आप लोग. इंडिया की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर किसके साथ है? लिखो. इंडिया लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर. अब भूटान में तो 700 किलोमीटर जाती है. Go to अमेरिका. नेपाल की नाव दो આટલા છે. અરે યાર, તમે મારું કહું છું એ તો લખો. મ્યાનમાર કરી દો. biggest line boundary
देन उसकी लेंथ कितनी है वो लिखना है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, द इंटरनेशनल बाउंड्री, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन. क्या है? रेडक्लिफ लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये अंकल की भी स्टोरी जोरदार है. और पार्टीशन हो रहा था तो बोलेगा एक ड्राइंग कौन करेगा बाउंड्री का, तो ये भाई साहब को बुलाया 7 दिन के लिए. आप सुनो, कहीं पे गया नहीं, रूम में ही रहा, क्योंकि उसको लूज दिस रियलिटी. हाँ, सो बेसिकली वो मैच देख के ही उसने सिर्फ बना दिया कि इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, एंड वो बाउंड्रीज तब से है, वो आज भी है. ये नेवर फिजिकली वेंट टू एनी प्लेसेस, और 7 दिन में वापस भाई. ठीक है, बट दैट लाइन इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन. इंटरनेशनल बाउंड्री मैंने बोला, जो कश्मीर की बाउंड्री है हमारी और पाकिस्तान की, दैट इज एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, वहां पे आर्मी वाले रहते हैं. और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, हाँ, वहां पे कौन रहते हैं? बीएसएफ वाले. देयर इज दिस डिफरेंसेस, मतलब ऐसा है, बाउंड्रीज पे कौन रहते हैं? बीएसएफ वाले, इंटरनेशनल बाउंड्री. और जो एलओसी है वहां पे हमेशा आर्मी वाले रहेंगे. ठीक है, चलो, दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ ये लाइंस याद कर लेना बाउंड्री की. ठीक है, इंडिया के एक एक मार्क में पूछ लेते हैं, ऐसी फालतू चीज है. एक लाइन में सिर्फ इतना लिख दो, रिसेंटली ओजोन वॉज डिस्कवर्ड. इतना ही लिखना है. ओजोन वॉज डिस्कवर्ड ऑन जुपिटर्स मून कैस्टिलो. कैस्टिलो. और कुछ डिटेल में लिखना नहीं है. पानी पानी है तो मैं पड़े यार. Jupiter's moon. थैंक यू दोस्त. कैस्टिलो. हाँ, पूरा सोना चाहती थोड़ी. ये तो मैं लूज कर दी. नेक्स्ट लिखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. वो बड़ा તમને યાદ આવી જશે બધું. देखो भाई, आरबीआई was formed on a recommendation by यंग्स कमिटी. ठीक है, वो नहीं, वो जरूरी नहीं है. मैं सिर्फ आपको थोड़ा बैकग्राउंड, वरना मैं अभी ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगा ना तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए. ठीक है, 1934 में शुरू हुआ आरबीआई, अप्रैल 1. ठीक है, लिखो, आरबीआई started functioning April 1, 1934. तो कितना साल हुआ अभी हमारा? 90 साल हुआ के वी सेलिब्रेटेड 90. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और अभी मैं आपको लिखवाता हूं, लिखो, इट वॉज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी. ये लोग ब्रिटिशर क्या, हर जगह रॉयल घुसे कुछ भी हो रॉयल. ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926, ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन. ये उसका हेड कौन था? हिल्टन यंग, ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन. उन्होंने क्या बोला? आरबीआई भाई बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934-1935 अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. आप समझो, इट्स स्टैट्यूटरी बैकिंग. आरबीआई वाज फॉर्म अंडर द आरबीआई एक्ट 1934. अभी भी यही चल रहा है. ठीक है, सेम ये सब चलता है.
मतलब ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यही चल रहा है, नो चेंज, ठीक है। सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज इट्स फर्स्ट गवर्नर। सर ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न, born, same किया है। It was nationalized in 1949. First governor. It was nationalized in 1949. मैं पहले जो बोलूं वो सुनना है, बाद में लिखना है। ऑसबोर्न स्मिथ क्या गवर्नर आरबीआई, गुजरात ना गवर्नर थोड़ी हશે। चलो, सी, even today it function, there is a committee which we call as central board of director। कितने दिन बैठते हैं पार्टी करने हैं टोटल? ना, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, लिखो, एंड 1 गवर्नर, ऑल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। देखो आरबीआई क्या क्या काम करती है, किसी को पता है? एनीबडी? बैंक्स को मॉनिटर करती है। બધું સાચું છે. All of the primary thing of RBI is to see money supply. क्या कहते हैं? पैसा सप्लाई करना है। सप्लाई एज इट्स इकोनॉमिक टर्म, बेसिकली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो पता है ना। आज की डेट में द प्राइम मैंडेट ऑफ आरबीआई इज टू चेक इन्फ्लेशन। क्या काम करना है? इन्फ्लेशन चेक करना है। कैसे करते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, these are the main tools। there are other supplementary exchange rate, ये SAR है, बहुत सारी विंडोज है, बैंक रेट होता है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट होता है, बहुत सारी है, बट द प्राइम थिंग इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर 2 दिन पहले, अगर आपने तो नहीं पढ़ा होगा, आप कोई भी अखबार उठा लो 2 दिन पहले का, सबसे पहली हेडलाइन होगी आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज 6.25, ठीक है, मतलब उतना ही उन्होंने रखा है। बाय दिस वे दे चेक द मनी सप्लाई। दूसरा, फॉरेक्स मैनेज करना। इंडिया का फॉरेक्स सारा पैसा किसके पास होता है? आरबीआई के पास। बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट में वोटिलिटी होती है, इंडियन रुपी बहुत ज्यादा गिर जाए तो ये क्या करते हैं? आरबीआई तब ही इंटरवीन करती है, वरना हम मार्केट फोर्सेस को अलाउ करते हैं रेट्स को फ्लक्चुएट होने में। लेकिन जब वोटिलिटी होती है तब आरबीआई हीरो बन के आ जाता है कि बस अभी मस्ती नहीं करने का, ठीक है। ओवरऑल बैंक के ऊपर सुपरविजन होते हैं आरबीआई के, पता होगा, पेटीएम को बोल दिया भाई तेरा धंधा बंद कल से, ठीक है। ये सारी चीजें आरबीआई करती है। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो लोग आप लोग खोटू, यस, मुंबई। जब शुरू हुआ था तब कलकत्ता में बैठते थे, बाद में मुंबई। भाई तू बंगलो देखेगा ना आरबीआई के गवर्नर का, जोरदार सी फेसिंग एकदम। हाँ तो सी फेसिंग, એના જો એ બધું છે ને, આ બધું ખાલી જોવા સારું લાગે, કામ એટલું હોય ને કે સી નો ફેસ જોવા બી ના મળે આપણને, એના કરતા આપણે જઈને આરામથી ચોપાટી પર બરાબર। ચલો आगे गाइस, आरबीआई, ठीक है, 90 इयर्स कंप्लीट हुए याद। हाँ, एक और होमवर्क है इंपॉर्टेंट, लिखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर? दोस्त आप पानी पटी जैसे चालશે। हाँ, આમ તો અહીંયા બોટલ હોય છે, આજે મૂકી નથી, બહાર ક્યાં જવું? ચલો
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. चलो જે આપણે લોકો ખાતા નથી એ મિલેટ્સ બરાબર કોઈ નહીં ખાતું. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा है 2023 के 2024? 23. इसलिए मैंने पूछा कौन सा वाला है 2023. That was whole year was recognized as International Year of Millet. देखो ध्यान से सुनो. इंडिया ने ये प्रपोज किया था टू द यूनाइटेड नेशन दैट millet is very essential to remove hunger and malnutrition from every place because it's one of the most only nutritious food. बाकी सब बकवास to be honest. जो है वो है. अभी क्या करूं मैं. ठीक है. Millets are very essential. So United Nations agreed on India's proposal एंड पूरे साल आपको नहीं पता होगा वो अलग बात है बहुत सारे इवेंट्स हुए. इवन ये G20 में भी सबको नाश्ता मिलेट वाला मिला था ये सब. ठीक है. कुछ खतरनाक नहीं मिला था. अब मैं तो बोलूं भाई कुछ गुलाब जामुन रसमलाई लाओ लेकिन मिलेट ही था. ठीक है. लिखो आगे. इट वॉज proposed by India and because of this all the campaigns it is now recognized as a global superfood. क्या कहते हैं मिलेट्स को? ग्लोबल सुपरफूड. क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज FAO ने रिसेंटली बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए थे फॉर मार्किंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. किसने? FAO. FAO का हेडक्वार्टर कहां पे? लिख के आना कल. The Food and Agriculture Organization is a United Nation agency. दिल्ली में थोड़ी बैठेंगे. बेल्जियम. बेल्जियम. लखो चलो बस कही दो जाओ. दोस्त આવું નહીં ખબર હું બધું. બાજરા જવાર રાગી એ બધું આવે. હા હા રાગી હા. ઇંગ્લિશ ખબર છે આ તો આટલું જ આવડે છે. હા ગાઈસ નેક્સ્ટ ઘરે જઈને જોજો. અત્યારે નહીં. હા હા. કલામ 250. કલામ 250 લખો પછી. हेडक्वार्टर्स बोलने वाले थे. कौन? I think it should be Italy. Rome. I tell you, it is one of the best jobs to work in United Nations. नहीं literally, I have a very dear friend. She, her mother is in this displaced people agency along with United Nations. आंटी भारत करता है. जलसा जलसा. Okay, it's a good job. Huh? Of course, everything is funded by United Nations. But काम अघरू હોય ને, you need a high willpower because you are dealing with displaced people. It's not easy to hear their stories. It's very challenging. फरवा મળે. चलो भाई कलाम 250 आगे लिखो. Yes. It is a high strength
कार्बन कॉम्पोजिट रॉकेट मोटर. ठीक है, बेसिकली क्या है ये? इट्स अ रॉकेट मोटर. रॉकेट में मोटर तो लगाना पड़ेगा. कार्बन कॉम्पोजिट. It uses solid propellant. It uses solid propellant. ठीक है. And we recently successfully test fired stage 2 of Vikram 1. Stage 2 of Vikram 1, जिसे हम क्या कहेंगे? कलाम 250. एक ऐसे ही नाम देते हैं जैसे गगनयान, लेकिन जो रॉकेट होता है वो सब तो अलग होता है, वैसा है. ठीक है, सर बहुत टाइप के हैं. बहुत है. बहुत नंबर इसके. yes, we have different ranges of PSLV. X, XL, ऐसा साइज है लिटरली. हाँ, D ऐसा सब कुछ है. नेक्स्ट लिखो भाई. फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट. वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड इन ब्रुसेल्स. कहां पे आया भाई? बेल्जियम. ठीक है. It was organized by International Atomic Energy Agency, IAEA, International Atomic Energy Agency. Very important agency for nuclear proliferation के लिए, एनर्जी के लिए, सबके लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Why this was done? उसका बैकग्राउंड बहुत जोरदार है. न्यूक्लियर एनर्जी इसके लिए चाहिए बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस अवर कार्बन एमिशन. सो रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 समिट हुई थी, कॉप 28. लिखो आप, कॉप 28 कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी? लिखो, वो आपका होमवर्क है. मैं पढ़ाया हुआ ही है, लेकिन मेरे पूछना भी नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है. कॉप 28 कहां पे हुआ था, बस उतना लिखना है आप. बट ठीक है. सो देयर वी डिसाइडेड एंड वी इंक्लूडेड दैट वी विल प्रमोट. જોઈએ then it was decided that we will promote atomic energy. Why? Because उससे अगर एनर्जी नहीं रहेंगे तो we will burn carbon. तो then वो करना है नहीं. ठीक है, लिखो. It was done to promote nuclear energy. इंडिया ने अटेंड भी किया था along with 30 other nations. કોપ 28 માં તો ઘણી બધી સ્ટોરીઝ હતી, મને તો મજા આવી ગઈ હતી. સો બેઝિકલી એમાં એવું હતું કે જે કન્ટ્રીમાં એ થઈ હતી, સો કોપ 28 બેઝિકલી યુ વિલ ઓલવેઝ થિંક દેટ યુ વિલ રિડ્યુસ કાર્બન. બટ ત્યાંની મીટિંગ્સમાં ત્યાંના બધા જે અમુક ખાસ લોકો હતા, they were talking about oil deals કે इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो. Yes. UAE basically. So UAE માં, you know, it was like very irony because UAE is like one of the again exporters of oil, नाम them, एवी रीते. चलो IAEA के बारे में लिख लो. It is work within United Nations. 1957 में एस्टैब्लिश किया था और इंडिया मेंबर है. ठीक है, 57. आपने एटम फॉर पीस ये सब नहीं पढ़ा कभी, इसलिए लाइक इट्स अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब पता होना चाहिए सबको आईएई के बारे में. आपने एनपीटी ट्रीटी पढ़ी है कभी? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया. ठीक है,
तो उसको ओवरसॉ भी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लिखो आगे। आफ्सपा एक्ट पता है, सुना है? करते क्या हो तुम लोग भाई? आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लिखो। ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आ चुका है काफी क्वेश्चंस एग्जाम में। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, जोरदार एक्ट है, एक बार लगाते हटाते ही नहीं। ठीक है, लगा दिया। बहुत मुश्किल से हटते हैं ये सारे एक्ट। ठीक है, रिसेंटली देखो, अभी पहले हिस्ट्री समझा देता हूँ। देखो, ये एक बहुत जोरदार एक्ट है, 1956-57 से चल रहा है। एट दैट टाइम लोग क्या है भूल जाते हैं, India was going through a very tough time because there were so many provinces, so many regions who wanted their own statehood demands. Prime boss at that time was Nagaland, अगर आपने कभी सुना हो। ठीक है, एक खतरनाक इंसान था, अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा उसका, मतलब एक अकेला इंसान था लेकिन पॉपुलैरिटी होती है अभी। ठीक है, तो so to curb all those disturbances, government decided that we should give the army or other paramilitary forces some special powers. ठीक है, क्या होते हैं स्पेशल पावर्स? सर्च, आप सर्च कर सकते हो विदाउट एनी वारंट, उड़ा भी सकते हो विदाउट एनी वारंट। ठीक है, बहुत कोई मस्ती करता है तो उसको उठा के पुलिस स्टेशन में डाल दो विदाउट वारंट, विदाउट। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं फॉर द रीजन कि भाई शांति बनी रहे। ठीक है, पहले नागालैंड में डाला, फिर मणिपुर में डाला, फिर मिजोरम, फिर डालते ही रहते हैं। ठीक है, मस्ती मजाक अच्छा नहीं लगता, डाल दो उधर। ठीक है, लिखो अभी आगे। इतने बढ़िया बढ़िया एक्ट है ना हमारे पास, वॉइसेस को स्टॉप कर। अभी बहुत एक्सट्रीमिस्ट ही हम सब, सभी ऐसे ही है कुछ ना कुछ बात के लिए। ठीक है, चलो पहले ये लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड आफ्सपा, अभी सिर्फ शॉर्ट में ही लिखना, 1958। ये एक्ट मैंने बोला 50, मैं 56, 57, 58 इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहां पे एक्सटेंड किया? नागालैंड। ठीक है, समझ गए? इवन आसाम गवर्नमेंट में देखो, अभी आप डिफरेंस समझ रहे हो। पहले मैंने क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल मिनिस्ट्री। अब मैं क्या कह रहा हूं? आसाम गवर्नमेंट, दे ऑल्सो एक्सटेंडेड आसवा इन सम 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आसवा के बारे में डिटेल्स लिखो। देखो, गवर्नमेंट ये तब चिपकाती है आपके ऊपर in those regions which they consider DA, disturbed areas. It is applied into disturbed areas. ठीक है, मस्ती नहीं करने का बच्चा, आसपा लगा देगा। Okay. डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 3 ऑफ आसपा। डिस्टर्ब एरिया कौन से पावर्स में यूज करूंगा? सेक्शन 3 ऑफ आसपा। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर। ठीक है, they can either declare a whole state, a part of a state, part of a city, उनके ऊपर as disturbed areas। ठीक है, ये अगर किसी ने आपको उड़ाया या आपके साथ गलत किया, ह्यूमन राइट्स इश्यू, you cannot even prosecute the officer or the person without getting permission from central government। मतलब मौजा ही मौजा है इधर। ठीक है,
इसलिए मस्ती नहीं करने, ठीक है। अगर मस्ती करते हो देन स्टेट एज अ रीजन टू यूज मोर वायलेंस। गांधी जी अहिंसा क्यों मानते थे, उसका प्राइम लॉजिक ये है, यू कैन नेवर डिफीट अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेट, ठीक है। हम कुछ भी करेंगे तो स्टेट हैज ऑल द मशीनरी, आप क्या कर लोगे एज अ सिविलियन, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन ये मास मूवमेंट इज वेरी डिफरेंट। तो शांति से बैठ के कोई मार के जाएगा तो ही विल ऑलवेज बी अ बैड गाय, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। एक लॉजिक ये बनता है, कौन अच्छा है कौन गलत है वो नहीं जानता, अपने को खाने पीने से मतलब। चलो आगे। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। कौन भाई घूमने गया है ताजमहल कुतुब मीनार, सॉरी ये सब का दूसरा कुछ बोलो जल्दी अपना वाला। अरे नहीं, गोवा। अरे हाँ नहीं, हाँ बता मॉन्यूमेंट्स का नाम बोलो जल्दी। रेड फोर्ट, जयपुर फोर्ट, हाँ दिवाली पर। यस कहे दिवाली पर नहीं, કયું દિવાળી પર. ના 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 હા આ બધી જગ્યાએ ગયા છો તો ત્યાં આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એવું વાંચ્યું છે બોર્ડ માર્યું હોય, હા બસ મારે એ એટલે મેં કીધું જલ્દી બોલાવા, બે ત્રણ માં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું, બીજા યાદ ના આવે। હા વાય અભી लिखो ASI, આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ, એટલે કીધું તો ખરા તોય યાર એટલે બધા જગ્યાના નામ કીધા જૂના જૂના તમને લોકોને। આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા बहुत बढ़िया काम करते हैं ये लोग, जमीन खोद के कुछ निकालते हैं, मतलब મંદિર નીકળ્યું. एक्सकावेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। जो जूनी पुरानी चीजें होती है रिनोवेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा रिनोवेट करते हैं कि नया लगता है अपने, ठीक है, पुराना दिखता ही नहीं है, ठीक है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, रिसेंटली मुझे इसके डिटेल्स नहीं पढ़ा ना, ASI के बारे में पता होना चाहिए। सी ASI कैसे फॉर्म हुआ, इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पावर दे डिराइव फ्रॉम वन एक्ट कॉल्ड आमसार एक्ट। लिखो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, सॉरी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, मैं कंफ्यूज हो गया, आर्कियोलॉजिकल आएगा, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स and Remains Act, Archaeological Sites and Remains Act 1958। डिटेल्स ही पढ़नी है इसकी, वाई शॉर्ट में बता देता हूँ। सी देर आर अ लिस्ट विच इज कॉल्ड नेशनल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या लगता है, दीज आर नेशनल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, टू कंजर्व देम, प्रोटेक्ट देम, मैनेज देम। टिकट भी आप निकालते हो अब तो ऑनलाइन मिलती है, तो उसमें भी ASI लिखा होगा। ऑल द जॉब इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बट देन गवर्नमेंट थॉट कि लिस्ट बहुत बड़ा है, 4000 से ज्यादा साइट्स है। देन कुछ साइट्स ऐसी होती है जो दिखती भी नहीं है, लेकिन ऐसा बोले मेमोरी में यहाँ पे कुछ था ऐसा, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अभी रिसेंटली क्या किया, उसे डिलिस्ट कर दिया कि अभी हम इसका ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय दैट वी शुड नो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी तो मैंने बोला नाउ इट वर्क्स अंडर दिस एक्ट, बट इट वाज स्टार्टेड, लिखने की जरूरत नहीं है, बाय 1861 में शुरू हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंगहैम करके एक बहुत खतरनाक इंसान था, उसने चालू किया था, ठीक है। हाँ बोलना भाई, जब इतने टाइम का आ रहा है तो एक बार एक छोड़ दो, और लेट करेंगे। ये बड़ी खोटी बात अब ना करें। हटने के बाद
क्या मतलब भाई લખો સ્ટેટ વિઝિટ ઓફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ટુ ભૂતાન 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 कोई अवार्ड स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू भूटान कुछ अवार्ड मिला जाने का प्लान है अच्छी जगह है हाँ અત્યારે गर्मी में अवार्ड मिला था ભૂતાન નું કેપિટલ શું છે જો ભાઈ બહેનો કેપિટલ યાદ રાખો એક એક માર્ક મફત ના જતા રહેશે ભૂતાન નું કેપિટલ શું છે ना वो नेपाल का है કાઠમંડુ लिखो थिम्पू नेपाल का नहीं है थिम्पू કાઠમંડુ દોસ્ત કાઠમંડુ नेपालનું તો પોતાનું થીમ્પુ બોલ્યો તો ખરા અવાજ ઓછો કરશો તો સંભળાશે ને તમને થીમ્પુ THIMPU નામ ના ગમતું હોય તો કોન્ટેક્ટ આપણા મિનિસ્ટરોને એ લોકો ચેન્જ કરી આપશે ચલો આગળ Prime Minister of India became the first foreign government leader. ये important है. First foreign government leader to receive Bhutan highest civilian award. Bhutan highest civilian award. जो कई स्पेलिंग पूछी ने तो छोड़ीश नहीं याद रख हाँ ઓર્ડર ઓફ હવે આ નામ છે ઓર્ડર ઓફ જો ડ્રંક ખબર છે ડ્રંક એમાંથી એન કાર્ડ નાખો અને લખો હું જે કહું છું ને એ કરો ડ્રંક માંથી એન કાર્ડ નાખો હા ગ્યાલ્પો GYALPO આ નામ છે એવોર્ડ નું બરાબર હાશ GYALPO કશું જ નહીં એક્ઝામમાં આટલું જ પૂછાશે કયો આપ્યો આપણે ચીપકાઈ દેવાનું આ ડ્રંક વાળું યાદ બી રહેશે તમને બરાબર हाँ बातें कह रहा हूँ सिर्फ सुनिए क्या बोला हमने भाई हम आपको पैसा देंगे दबा के चिंता मत करो कितना पैसा અરે એવોર્ડ નહીં લાવું ના બોલ અત્યારે બધું ઓનલાઈન ચાલે હું એવું નહીં કહેતો આપણે શું કમિટમેન્ટ્સ આપ્યો એઝ અ કન્ટ્રી ધેટ વી વિલ પ્રોવાઈડ હું સ્કૂલમાં જીતતો નતો કોઈ બી ઇવેન્ટમાં તો મારું મેડલ ઘરે ફિક્સ જ હોય પપ્પા લઈને જ આપે બેટા બરાબર આગળ લખો હા સોરી લખતા નહીં we said that we will assist you close to 9,000 crores आपको हम देंगे पैसा why भूटान is a very important है हिस्ट्री नहीं बतानी है आपको भूटान की हमारी आर्मी होती है भूटान तो इन दैट वे इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर ठीक है फिर द बेस्ट थिंग वी डू इन भूटान इज वी हेल्प देम टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स और जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको वी परचेस इट फ्रॉम भूटान ठीक है भूटान इज अ माउंटेनियस रीजन ग्लेशियर्स है पानी आ रहा है मस्त बना रहे हैं हम लोग ठीक है बस हो गया એટલે ઓ ચલો કીધું ને તો છોડીશ નહીં યાદ રાખ હા આજે હવે બીજું વિમાન નથી બનાવવું તો તમે લોકો કંટાળી જશો એટલે કશું નહીં હજુ આગળ ચલો सर आप 5 की छुट्टी पे गया 5 भी जल्दी नहीं छोड़ सकते ભાઈ મારે તો એવું કામથી હતું બધું મેં છોડને हर वीकेंड अलग अलग होए યસ मस्ती करने का सर आपके काम બેટા કહેવાની વસ્તુ છે આ કોલેજમાં મજા કરી લો કામ કરવાનું ચાલુ કરશો ને ખબર પડશે બરાબર આ તો વાત છે અરે યાર ક્યાં ગયું ज्यादा जल्दी से
गाइस एक होमवर्क लिखो यू एक स्टैंड अलोन क्वेश्चंस में एक हमेशा याद रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितनी है टोटल नंबर 81 બધું ખોટું જ બોલો તમે ચિંતા ના કરો નોટ ઇવન ક્લોઝ બરાબર 33 નોટ ઇવન ક્લોઝ Not even 100. 53 सर 3 था यार વાય આઈ ફીલ બેડ તમને ખબર છે જ્યારે અત્યારે રિસન્ટલી જે એડ થઈ હતી ને वो भी आपने હા એ જ અને ત્યારે મેં બધી વસ્તુ કરાવી હતી તોય એક જણ સાચું નથી બોલ્યું ચલો લખો ટોટલ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સ હું જે ક્વેશ્ચન કહું છું એ લખો ને ભાઈ ટોટલ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સ ઇન ઇન્ડિયા નેચરલ કેટલી છે ત્રણ કેટેગરી હોય નેચરલ મેનમેડ અને મિક્સ ત્રણ કેટેગરી બરાબર બધું કરાયેલું ચિંતા ના કરો લેટેસ્ટ છેલ્લે એડ કઈ થઈ એ લેટેસ્ટ કઈ એડ થઈ સાઇટ્સ એ બરાબર सर लास्ट का बोली थी પાછલા વર્ષે એટલે 2023 आपने बताया મેં પढ़ा અમુક વસ્તુ એટલે જ પણ હવે તો તમારા બધાને કઈ કામ આવે એક્ઝામ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ બીકોઝ દે વિલ જસ્ટ આર્ગ્યુ બીચ સાઇટ્સ લેટેસ્ટ એડેડ ઇન ધ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સ પછી તમે આમ કન્ફ્યુઝ થઈ જશો શું છે એટલે કહું છું બરાબર ગરબા કો કુછ હુઆ था याद है वो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के हाँ उसके डांस पूजा को दुर्गा पूजा બરાબર બસ પણ આ યાદ રાખજો આ ભાઈ આ અત્યારે જરૂરી છે અને યુનેસ્કો નું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે એ તો તમને ખબર જ હશે એટલે હું કઈ કહેતો નથી यार एक मेन इवेंट है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा डांडी मार्च मेरे को याद कराना पढ़ाने में हाँ हाँ गुड फ्राइडे पार्टी गुड फ्राइडे पार्टी अरे बकरा એ ભાઈ આવું બધું ખા પીવાની વાતો યાદ ના કરાય ને રજાની વાત ના યાદ કરાય अपना ब्लैक टाइगर कहाँ पे मिलता है पढ़ाया हुआ है तो वैसे नॉट आएगा वो अच्छा नॉट ईस्ट वेरी गुड इतना याद आया वो भी मुझे अच्छा लगा मेलानिस्टिक टाइगर कहाँ पे मिलता है नॉर्थ ओडिशा नॉर्थ ईस्ट अरे वाह लिखो मेलानिस्टिक टाइगर मेलानिस्टिक इसलिए है कि ये एक टाइप का जिन है जो ज्यादा होता है तो टाइगर ब्लैक हो जाते हैं गोल्डन की जगह ठीक है પેન્થર તો અત્યારે જ જોઈને આવ્યો પેચમાં બ્લેક એ અલગ હોય આ તો આખો ટાઈગર જે હતો એ તો પડે પણ આ ટાઈગર રેર ધીસ બ્લેક ટાઈગર આર વેરી રેર બરાબર ચલો लिखो मेलानिस्टिक टाइगर समर है भाई सर कहाँ पे मिलता है ओडिशा लिखो स्पेसिफिकली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड वर्ल्ड की सबसे पहली सफारी फॉर मेलानिस्टिक टाइगर इज डन बाय इंडिया इन ओडिशा टाइगर देखते देखते तो मैं सो गया एक बार तो सुबह उठ के जाने का सफारी में तो आता नहीं है आलसी इंसान मैं सो गया लास्ट
लास्ट चलो। मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, आप लोग काम करो। इतना मैं जो 2 क्वेश्चन बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं अभी 1 महीने के बाद आया, इसलिए आज मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट सैटरडे संडे से ऐसी उम्मीद मत रखना, ठीक है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का हेडिंग मारो अभी। आज मैंने कुछ भी इतना भारी नहीं पढ़ाया, ठीक है, बट लेकिन नेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक से। इसमें आपको 2 चीज करनी है होमवर्क। ये केस जो था उसका कुछ नाम होगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पुट्टुस्वामी जजमेंट हम कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट राइट टू प्राइवेसी। वो पुट्टुस्वामी केस के अंदर जजमेंट क्या है, दैट राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो राइट टू इन्फॉर्मेशन ના ના એ વસ્તુ અલગ. અત્યારે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ જે છે એમાં who versus who એ તમારે જોવાનું છે. બીજેપી ના હોય દોસ્ત, તમે લોકો સમજો, it is always central government, it is state versus, બરાબર. એ પહેલું કામ. બીજું કામ, 5 જજ બેસ્યા હતા, 100 કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બેન્ચ 5 જણ બેસ્યા હતા. એ 5 ના નામ જોઈએ મને, લખો. એ તો ચીફ એ બધા બાકીના કોણ? ચંદ્રચૂડ સાહેબ ગયા, સુપ્રીમ કોર્ટ નું જોવાનું બી બંધ કરી દેવાનું. બોગસ જયા એટલે રિટાયર તો થશે. બરાબર. देखो ये सारे टॉपिक्स, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी डिटेल में पढ़ना है, यूसीसी भी पढ़ना है, इलेक्टोरल भी पढ़ना है, ज्यादा लिखने का होगा। ओके, ये लोग खरीदना सकता पोस्टर मार लेक्चर किधर है? अरे जवाब, अरे जवाब।